So hello and welcome again, students. This is me, your English teacher Hirsch, and we were doing the chapter Should Wizard Hit Mommy, and this is the part 2 of it. So should wizard hit mommy? This was the question and this was the name of the chapter. Actually, we did the first part, and in the first part we saw that there was a custom of telling the stories to the younger ones by the elder ones, and the elder is father of Joe, Mr. Jack here, and he was telling the story to his daughter, the little Joe. The story was, there was an animal named Roger. It was Roger skunk, and he had a problem of smelling bad. He went to the owl, the wise old owl, and now we are here in this story. He told about his problem to the wise old owl, that I smell very bad and nobody is ready to play with me. What should I do? Then the little Joe prompted, as she already knew what is going to happen in this story, because it's the usual story, is the normal story, is the general story her father used to tell her day by day. So she already knew what is going to happen in this story. So she prompted, please bring the wizard for help. Now her father, Jack, advised her not to disturb in between while he is telling the story. As father was telling the story was of her father's, not the Joe's story. It's her father's story. So Jack, the father, says further. And the wise old owl thought and thought and thought and said, why don't you go to the wizard, the magician? Well, their children, wizard was a magician, and he had a mastery in some magical tricks, and he usually solved the problems of the animals using those magical tricks. So the little Roger went to the wizard, the magician. The magician asked the little Roger, what do you want to smell like? Roses, of course. Okay, it will take 7 pennies, but I only have 4. No problem. There is a condition. If you only have 4 pennies, I have a solution for it. You go to the magic well, then turn around 3 times, and there you will find the remaining 3 pennies. Take those 3 pennies and come back. He did the same. Went there to the magic wall, turned around for 3 times and took those 3 pennies and came back to the wizard. He was very happy because the problem was solved, and now he smelled like roses. Everybody was ready to play with him, and he smelled pretty good, just like roses. He played with the animals for a long time, but the problem started when he went to his mom. His mom didn't recognize him. He said, Mom, it's me, your little son, your little Roger. But the mom was very sad. In fact, she was very angry. She wanted to kill the magician, the wizard, because he changed the natural smell of her child. She took an umbrella and hit the wizard right over his head, and he was ready to change the smell into the normal one. Now the things were just the same as they were before. Nobody was ready to play with the little Roger. But the mom said, I don't care. I need you to smell like me. I need you to smell like the real skunk smell. It's the natural smell of you. I don't like the smell of roses. I don't like any fancy smells, any fancy fragrances. This is a natural smell. We are skunks and we should smell like this. The little Joe, the little girl who was listening to the story very carefully, was very angry actually. She requested her daddy to change the story. And what was the change? Let the wizard hit the mummy, because she was very bad. The mom of the little Roger was very bad. What the kind of mom she was? She didn't like the happiness of her child. She was not happy while her child was playing with the other animals, and the other animals were happy with her child. She was not happy. So, Daddy, you please change this story, and wizard should hit the bad mommy. Actually, the point was that her father told her,
The point was that the little Roger loved and liked her mom more than he loved and liked the other animals. That's the story. So at the last of the story, the problem raises again. Do children accept the stories as we tell them, as it is, or do they want some changes? So the question is the question for all till now. तो बच्चों, अपनी कहानी का हीरो द लिटिल रोजर स्कंक वो है अभी द वाइज ओल्ड ओवल के पास में, और वो उसे अपनी समस्या बता रहा है, अपनी प्रॉब्लम बता रहा है. ये है उसकी प्रॉब्लम कि उसमें बहुत बुरी बदबू आती है. ही स्मेल्स वेरी बैड, और द अदर एनिमल्स आर नॉट रेडी व्हेन ही गोज़ टू द अदर एनिमल्स. तो ओवल कहता है कि समस्या तो बड़ी है, कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. तो क्योंकि जो को पहले से ही पता था कि उसके डैडी रोजाना ही इसी तरह की स्टोरी सुनाते हैं, वाइज ओल्ड ओवल उसको सजेस्ट करेगा कि विज़र्ड के पास जाओ और वो एक म्यूजिशियन है और वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगा. तो जो प्रॉम्प्ट करती है, उसके पिताजी को रिक्वेस्ट करती है ये करने के लिए कि विज़र्ड को बुलाओ, प्लीज़ ब्रिंग द विज़र्ड फॉर द हेल्प ऑफ द लिटिल रोजर. तो जैक, उसके पिताजी उसको समझाते हैं, एडवाइस देते हैं कि बेटा आप बीच में डिस्टर्ब मत करो, पापा स्टोरी सुना रहे हैं, स्टोरी पापा की है तो आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते. द स्टोरी विल बी जस्ट द सेम एज योर फादर इज टेलिंग यू. तो जो मान जाती है और स्टोरी आगे बढ़ती है. जैक यानी कि फादर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि जो विज़र्ड, वो जो रोजर था, रोजर स्कंक, वो सोचता है और सोचता रहता है बहुत देर तक, और बहुत देर तक सोचने के बाद में उसको सलाह देता है ओवल कि व्हाई डोंट यू गो टू द विज़र्ड. और फाइनली वो विज़र्ड के पास चला जाता है. विज़र्ड एक म्यूजिशियन है और वो अपनी मैजिक ट्रिक से जानवरों की समस्याओं का समाधान कर देता है. तो जब वो विज़र्ड के पास जाता है रोजर स्कंक, तो वो कहता है कि आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव अ बैड स्मेल एंड नोबडी इज रेडी टू प्ले विद मी. तो विज़र्ड कहता है व्हाट डू यू वांट टू स्मेल लाइक, किसकी तरह की खुशबू चाहिए तुम्हें? मुझे रोजेस की खुशबू चाहिए. किसको नहीं चाहिए रोजेस की खुशबू? ओके, रोजेस की खुशबू तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन 7 पेनीज तुम्हें देनी पड़ेगी फॉर द पेमेंट. तो उसके पास 7 पेनीज नहीं थी, उसके पास 4 ही पेनीज थी. तो उसने कहा कि इसका भी सोल्यूशन मेरे पास है, आपको एक मैजिक वेल के पास जाना पड़ेगा, 3 बार घूमना पड़ेगा, वहाँ से तुम्हें जादू मंत्र छू करना पड़ेगा और बाकी रिमेनिंग 3 पेनीज तुम्हें मिल जाएगी और तुम वापस आ जाना, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा. ऐसा ही हुआ और उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया. और रोजर स्कंक बहुत ही खुशी खुशी वापस जंगल में लौटता है. तो सारे जानवर उसके चारों तरफ गैदर हो जाते हैं और उसके साथ खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं. तो इस तरह से रोजर स्कंक वापस चला जाता है जंगल में और सारे जानवर उसके साथ खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, रोजेस की फ्रेगरेंस उसमें आ रही थी. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं थी. प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब वो अपनी मॉम के पास वापस गया खुशी खुशी और मॉम को बताया कि आई एम योर लिटिल सन, आई एम योर लिटिल चाइल्ड, द रोजर स्कंक, द लिटिल रोजर, एंड आई स्मेल लाइक रोजेस. उसकी मॉम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. उसकी मॉम ने इनफैक्ट उसको पहचानने से ही मना कर दिया कि यू आर नॉट माई सन, माई स्मेल स्मेल्ड लाइक, माई सन स्मेल्ड लाइक अ लिटिल रोजर, बट यू स्मेल लाइक रोजेस, यू आर नॉट माई सन. मेरे बच्चे में तो रोज स्कंक की खुशबू आती है और तुम में रोजेस की खुशबू आती है. मॉम को बहुत गुस्सा आया और वो इनफैक्ट उस विज़र्ड को जिसने उसके बेटे की खुशबू चेंज की थी उसको मारने के लिए तैयार हो गई. उसने एक अम्ब्रेला लिया, एक छाता लिया और वो उसके म्यूजिशियन को मारने के लिए तैयार हो गई. वो चली गई और सीधे उसके सिर पे दे मारा. तो म्यूजिशियन डर गया और उसने उसके बेटे की खुशबू वापस चेंज करके नॉर्मल कर दी. अब क्या हुआ? वापस पहले जैसी सर्कमस्टेंसेस, पहले जैसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई. कोई भी उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो उसकी मॉम को बहुत अच्छा लग रहा था. मॉम कहती है कि आई डोंट केयर अबाउट व्हाट द कंडीशंस आर, व्हाट द सर्कमस्टेंसेस आर, आफ्टर चेंजिंग योर स्मेल इनटू द नॉर्मल वन. तुम्हारी स्मेल वापस नॉर्मल हो गई तो तुम्हारे साथ कोई खेलता है कि नहीं खेलता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करना चाहिए इन कंपैरिजन टू द अदर एनिमल्स. और यही इस स्टोरी का पॉइंट है कि रोजर स्कंक अपनी मॉम से ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए वो नेचुरल स्मेल जो उसकी मॉम को पसंद थी वही उसे पसंद होनी चाहिए. रोजेस की स्मेल तो दूसरे जानवरों को पसंद थी और दूसरे जानवरों के कंपैरिजन में वो अपनी मॉम से ज़्यादा प्यार करता था. एंड एवरीबडी शुड लव हर और हिज मॉम मोर देन द अदर वंस, मोर देन द अदर फ्रेंड्स. जो इस बात से बहुत नाराज़ हो गई और वो कहती है कि ये बुरी मम्मा है, बुरी मॉम है. क्यों? क्योंकि
ऐसी कौन माँ होगी जो अपने बेटे को रोजेस की तरह स्मेल करते हुए नहीं चाहेगी? तो अब डैडी आप स्टोरी को चेंज करो और आप क्या करो कि वो विज़र्ड डेट मम्मा को मारे, विज़र्ड हिट करे मॉम को, रोजेस स्कंक की मॉम को। तो डैडी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया, ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि रोजेस स्कंक लव्ड his mom more than he loved the other animals. So that's the end of the story. समस्या यहाँ पर वैसे की वैसी रहती है कि क्या हमें बच्चों को स्टोरीज जैसी सुनानी चाहिए वैसे के वैसे बच्चों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या जो बच्चे कुछ चेंजेस करते हैं उन चेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? The question is the same. You have to answer that and you have to find out the answer. So dear children, this is the end of it and this is the end of the chapter. Like, share and subscribe to my channel. Take care of yourself. We will meet in the next video of the next chapter. Bye bye.